Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. I welcome you all in my YouTube channel English classes with the Shashi Singh. And here in this video today we will complete the poem that is Friends and Flatterers. This poem is composed by William Shakespeare. So let's begin with this poem, but before that know the meaning of these two words friends and flatterers. As you all know, friends means दोस्त होता है, मित्र होता है, and the flatterers means the person who treat you, who takes you in their own use to fulfill their wishes. means ऐसे लोग जो कि आपको सिर्फ यूज करते हैं अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए. So those are called flatterers. means ऐसे इंसान जो कि सिर्फ आपको खुश कर देते हैं आपकी बातों से ही. क्यों ऐसा वो क्यों करते हैं? अपने किसी भी एम को, अपने किसी भी मोटिव को फुलफिल कराने के लिए. So let's begin with this poem. In this poem, the poet has very beautifully crafted and depicted the qualities of a true friend. एक true friend के qualities को काफ़ी beautifully depict किया है इस poem के अंदर poet Shakespeare ने. And we sometimes carried away by flatterers and fail to recognize the feeling of a true friend. What he says next? He says that sometimes it happened with us that we carried away by flatterers. Means what? We remain very happy with the flatterers and fail to recognize the feeling of a true friend. और हम लोग true friend की feelings को recognize करने में, पहचानने में fail हो जाते हैं और carried away करते हैं flatterers के साथ में, खुश रहते हैं उन लोग के साथ में. So what is the poem it is? So for that watch this video and read it carefully and know the identities of a genuine friend who can be worthy companion. जो कि आपका एक अच्छा कंपेनियन हो सकता है, आपका एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है. ऐसे एक ट्रू फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो आप देखिए. Everyone that flatters thee you is no friend in misery. What the poet here says, he says that everyone that flatters thee. देखिए ये जो पोएम है it is composed by William Shakespeare. So ये जो इंग्लिश है इस पोएम में लिखा हुआ ये भी उन्हीं के टाइम का है, कंटेम्प्रेरी टाइम का है. तो एट दैट टाइम यहाँ पे यू को दी यूज करते थे, दी, दा, थाय, है ना, इन वर्ड्स को यूज करते थे. सो एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी मीन्स every person who flatters you is no friend in misery. What he says is no friend in miseries means what? कि वो miseries के टाइम पे, miseries means bad time, आपके बुरे वक्त में आपका फ्रेंड कभी नहीं हो सकता. कौन सा इंसान? जो कि आपको फ्लैटर करता है, आपकी चापलूसी करता है. ठीक है. वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड. नेक्स्ट द पोइट सेज दैट वर्ड्स आर ईजी. शब्दों को बोलना बहुत कठिन है ना. कुछ भी बोल देना, फ्लैटरी कर देना, चापलूसी कर देना, अच्छा अच्छा बोल देना, वो बहुत ईजी है. लाइक द विंड, हवा के जैसे. एज इट इज विंड ऑल अराउंड, अदरवाइज वी कांट लिव. So it is very easy to say something about someone, but faithful friends are hard to find. It is very hard to get or to find the faithful friends. अच्छे दोस्तों को, faithful friends को, faithful means होता है वफादार, जो कि हमारे साथ हमारी हर एक मुश्किल में खड़े हों. ऐसे दोस्तों को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है. The next stanza is every man will be thy friend. What the poet next says कि every man will be thy friend. Thy means again your. Everyone will be thy friend. हर कोई आपका फ्रेंड होगा. whilst thou hast wherewith to spend. देखिए जो वर्ड whilst यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है while, WHILE, और while का मीनिंग होता है जबकि. कब की? जबकि. क्या होगा? thou means you, has means have. जबकि आप रखते हो क्या? wherewith का मतलब मीनिंग है इस पोएम के अंदर, wherewith का मीनिंग है मनी. जबकि आपके पास में मनी हो क्या करने के लिए? स्पेंड करने के लिए. लेट्स लुक एट द लाइंस अगेन. एवरीवन विल बी थाई फ्रेंड्स whilst thou hast wherewith to spend. मीन्स व्हाट? कि हर कोई आपका फ्रेंड बन जाएगा. जब, कब? जबकि आपके पास wherewith हो, काफी सारा पैसा हो स्पेंड करने के लिए. बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट. लेकिन अगर स्टोर ऑफ क्राउन्स फिर से यहाँ पे किसको बोला है? मनी को बोला है. वैसे तो क्राउन का मतलब मुकुट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जब आपके पास में क्या हो जाएगा? स्टोर ऑफ क्राउन्स, पैसे का जो स्टोर है वो स्कैंट हो जाएगा. स्कैंट का मीनिंग है खत्म हो जाएगा, उसकी शॉर्टेज आ जाएगी. नो मैन विल सप्लाई थाई वांट. तो कोई भी व्यक्ति
आपके पास नहीं आएगा और वो काम नहीं करेगा जो आप चाहते हो। मीन्स आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा अगर आपके पास में पैसे की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग। इफ दैट वन बी प्रोडिगल, देखिए मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोडिगल का मीनिंग होता है अ पर्सन हु स्पेंड मनी लैविशली, जो कि लैविशली किस पैसे को खर्च कर देता है। एक्स्ट्रावेगेंट भी होता है इसका, स्पेंड थ्रिफ्ट भी इसको बोलते हैं, इसके सिनोनियम्स हैं ये। तो इफ दैट वन बी प्रोडिगल, अगर वो इंसान अमीर तो है ही, उसके साथ साथ में प्रोडिगल भी है, मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट भी है, अधिक खर्च करता है, ज्यादा पैसा वेस्ट करता है, देन दे विल हिम कॉल, मीन्स वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल मीन्स beneficial, that the particular person is very beneficial for them and they call him that he is or she is the gift from God for them, कि वो सोचते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो बंदा हमारे लिए क्या है, भगवान का गिफ्ट है, भगवान का वरदान है, इसके पास जो भी पैसा है उसको खूब यूज में लो और इस इंसान को खूब यूज में लो। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, पिटी बट ही वर किंग, लेकिन जो पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, वो बोलते हैं बट, कि मुझे दया आती है, बट ही वर अ किंग, कि वो अपने आप को किंग मानने लगता है, उन लोगों के कहने पर वो अपने आप को राजा मानने लगता है, रहीश मानने लगता है, इस चीज पे मुझे बहुत दया आती है। ठीक है, बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्रोन देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, then they that font on him before use his company no more, but if fortune once do frown, देखिए फॉर्चून का मीनिंग आप सब जानते हो, लक होता है, लेकिन अगर लक एक बार कैसा हो जाए, फ्रोन हो जाए, फ्रोन का मतलब एंग्री हो जाए, आपसे नाराज हो जाए, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, तो उसके रिनोन को, रिनोन मीन्स पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी को वो क्या बोल देते हैं, फेयरवेल बोल देते हैं। ये आया है फॉल्स फ्रेंड के लिए स्टैंजा, कि उसके जो फॉल्स फ्रेंड होते हैं ना, मान लीजिए कभी उसका लक उससे नाराज हो जाए, ऐसे व्यक्ति से जो कि उनके लिए बहुत पैसा खर्च करता था और वो टाइम के साथ साथ अगर गरीब हो जाता है तो फेयरवेल कर देते हैं, फेयरवेल मीन्स बाय बाय कर देते हैं उसके रिनोन को, उसकी पॉपुलैरिटी को, उसके फेम को, सारी चीज़ों को, उसके रिस्पेक्ट को, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं ऐसे इंसान को, जब वो उनके यूज़ का नहीं रहता, जब उसके पास में कुछ नहीं रहता उनके ऊपर खर्च करने के लिए। दे दैट फोन्ड ऑन हिम बिफोर मीन्स दे, वो लोग जो कि पहले फ्लैटरी करते थे, पहले फ्लैटरी करते थे उसकी, यूज हिज कंपनी नो मोर, अब वो उसकी कंपनी को यूज नहीं करेंगे, उसके बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देंगे उसकी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, यूज हिज कंपनी नो मोर, उसके आगे जब वो गरीब हो जाएगा उसके आगे वो उसकी बिल्कुल भी कंपनी नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे उसका। ही दैट इज थाई फ्रेंड इन डीड, ही विल हेल्प थी इन थाई नीड, इफ थाउ सोरो ही विल वीप, इफ थाउ अवेक ही कैन नॉट स्लीप, मीन्स वॉट, ही दैट इज थाई फ्रेंड इंडीड, यहाँ पे ट्रू फ्रेंड की जो आइडेंटिटी है वो बताई गई है, दैट इज थाई फ्रेंड इंडीड, इंडीड मीनिंग होता है रियली, वास्तव में, तो वो ही आपका वास्तविक या रियल फ्रेंड हो सकता है, ऐसा इंसान जो कि ही विल हेल्प थी इन थाई नीड, जो कि आपकी नीड के टाइम पे, आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपकी क्या करे, हेल्प करे। इफ थाउ सोरो मतलब थाउ मीन्स यू, अगर आप सोरो में हैं, ही विल वीप, तो वो भी रोएगा, किसकी आइडेंटिटी है ये, ट्रू फ्रेंड की। इफ थाउ सोरो मीन्स इफ यू फील सोरो देन ही विल वीप, तो वो भी रोएगा। देखिए वीपिंग और क्राइंग में अंतर होता है, वीप होता है एक साउंडलेस या विदाउट साउंड जो रोता है इंसान, एडल्ट्स जो रोते हैं, और क्राइंग हम बच्चे के रोने को बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी रोने लगता है। एंड इफ थाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, और अगर आप जागे हुए हो तो वो भी नहीं सो सकता है। आगे देखते हैं। Thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. These are certain signs to know, faithful friend from flattering foe. Thus of every grief in heart, what it means to say to the poet शेक्सपियर क्या बोलते हैं, Thus of every grief in heart, मतलब अगर आपके हार्ट के अंदर every grief है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है, परेशानी है, he with thee doth bear apart,
तो वो जो कि आपका एक ट्रू फ्रेंड है, आपका सच्चा दोस्त है, आपका रियल फ्रेंड है, विद दी, डोथ का मीनिंग होता है डोंट, बियर का मीनिंग होता है टॉलरेट, और अपार्ट का मीनिंग होता है सेपरेशन. सो एट द टाइम व्हेन यू हैव अ हार्ट विद ग्रीफ, he don't bear, he don't tolerate टू बी सेपरेट टू यू. वो आपसे कभी भी सेपरेट होना बियर नहीं करेगा, कभी भी आपसे दूर जाना नहीं सोचेगा, सहन नहीं कर सकता आपसे दूर जाना. किस वक्त? जबकि आपका क्या है, हार्ट में क्या है, एवरी ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द है. ऐसे नहीं कि हार्ट अटैक आ रहा है, दर्द हो रहा है. नो, मीन्स वॉट हियर, अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो आपका एक ट्रू फ्रेंड जो होता है वो कभी भी, डोथ मीन्स डोंट, बियर मीन्स टॉलरेट, और अपार्ट मीन्स सेपरेट, वो कभी भी आपसे सेपरेट होना सहन, टॉलरेट नहीं करेगा, करता है. दीज आर सर्टेन साइंस टू नो. ये पॉइंट बोलते हैं कि ये कुछ सर्टेन साइंस हैं, कुछ चिन्ह हैं, संकेत हैं ये जानने के, फेथफुल फ्रेंड को फ्रॉम फ्लैटरिंग फॉय, आपके फेथफुल फ्रेंड और फ्लैटरिंग फॉय. फॉय का मीनिंग होता है एनिमी. ओके, एनिमी. तो बोले कि फ्लैटरिंग फॉय, फ्लैटरिंग करने वाले आपके दुश्मन की, और फेथफुल फ्रेंड के, यही कुछ सर्टेन साइंस हैं जिनको आपको जरूर से जानना चाहिए. एंड हियर दिस इज द लास्ट लाइन, फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फॉय, देयर इज the figure of speech, that is alliteration, because here is the repetition of the same letter f f f f many of the times. Got it? I hope this video is or this poem is very clear to you. So if you like this video, please subscribe my channel to get new videos, to get new chapters, and share it if you like it. Thanks a lot for watching it.